Welcome to उपस्थित News हैं। Click. As part of Dr. Ambedkar's 126th birthday देवियों anniversary सज्जनों, series, we have with us Dr. Shailaja अतिथि Pai, देवो भव हमारी Faculty of संस्कृति History, रही है University of Cincinnati, और with इसी us to talk to us तारतम्य about में Dr. कार्यक्रम को Ambedkar's श्रृंखला में ideas for मेरा the human निवेदन society प्रेषित and the है। Indian, माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा society at उत्तर large. प्रदेश श्रीमान Welcome to आशुतोष News Click, टंडन Dr. जी, Shailaja. जिन्हें प्रदेश के लोग स्नेह एवं Dr. सम्मान से Ambedkar's गोपाल जी education के journey नाम has से been संबोधित phenomenal. करते हैं, And कृपया his स्वागत thrust भाषण on, प्रस्तुत करने की education कृपा for the करें। liberation of the Indian माननीय masses. मंत्री Could you प्राविधिक throw some शिक्षा। light on his journey to the US and abroad for his education, pursuing his education and his जन जन की education as an आशा के instrument केंद्र, for the liberation of the Indian masses? Yeah, so as we all know, हिंदुस्तान के Ambedkar लोकप्रिय was an प्रधानमंत्री, absolutely eminent leader who परम आदरणीय श्री नरेंद्र came मोदी from जी a Dalit background, and that is the reason he had to face certain social प्रदेश में obstructions. गार्जियन And this happened स्वरूप when he was schooling in the Bombay श्री Presidency in राज्यपाल colonial times. आदरणीय श्री And राम नायक Still, जी, he was pursuing his education. He हमारे wanted to learn, for example, the लोकप्रिय Sanskrit language. ऊर्जावान He मुख्यमंत्री was also facing a lot आदरणीय of social श्री discrimination योगी when he tried to आदित्यनाथ do जी, this. So, for example, he had प्रदेश to के bring his own mat उप to मुख्यमंत्री the classroom, or he आदरणीय had to केशव sit मौर्य at the end जी, of the classroom. So while उप facing all मुख्यमंत्री these आदरणीय difficulties, डॉक्टर we दिनेश see what शर्मा this जी, man is trying to achieve सांसद and कौशल pursue किशोर his जी, aims and objectives. और When he's doing this, we have इस विश्वविद्यालय के regional prince उपकुलपति Maharaja प्रोफेसर Gaikwad विनय of पाठक Baroda, जी, who finances Ambedkar मैं studies, आज and he is financing other इस non-Brahmin and Dalit ऐतिहासिक students क्षण also. पर And he helped आदरणीय Ambedkar प्रधानमंत्री जी का attend Columbia University. अपनी ओर से from where आप Ambedkar सबकी can, ओर से attend his हार्दिक PhD. स्वागत, He went to अभिनंदन, oversee वंदन in करता हूं। England. And that is how he tried to achieve to मित्रों, attain the highest levels as हमारे a आदरणीय person प्रधानमंत्री coming जी from की a प्राथमिकता particularly है depressed class कि देश and की to कुल seek आबादी the का highest level of education. 65% जो So युवा while है, doing this, we see that उसे he is उचित actually रोजगार के अवसर challenging प्राप्त हो and breaking और वो the law भारत के codes नव of, निर्माण for example, और Manu, the most सर्वांगीण विकास widely में अपनी quoted figure. भूमिका So अदा if, कर for example, सके, they इसके happen लिए to listen to गुणवत्तापूर्ण so-called religious उच्च शिक्षा scriptures की and आवश्यकता or है। others, तकनीकी शिक्षा molten lead was to be poured एक into ऐसी the विधा university. है So this जो is why समाज we के need to दैनिक जीवन understand को what Ambedkar was trying to do. सरल और So सुविधाजनक his बनाने का educational मार्ग philosophy प्रशस्त करती is है। very much grounded डॉक्टर in एपीजे his अब्दुल social कलाम background, प्राविधिक in विश्वविद्यालय his political, प्रदेश में cultural, तकनीकी उच्च ideological शिक्षा के and विकास intellectual पथ का aims प्रेरक and बना है ambitions. और So प्रदेश what में Ambedkar is saying is that गुणवत्तापरक there are two levels. तकनीकी He wants शिक्षा Dalits प्रदान to first करने के just लिए they प्रयासरत enter है। schools. And that is the 600 first stage, से अधिक because historically speaking, we इंजीनियरिंग have कॉलेजेस certain और marginalized संस्थान communities not इस allowed to विश्वविद्यालय से access संबद्ध education. So हैं that access initial और was very, 3 very लाख important. से अधिक And the second छात्र stage that शिक्षा Ambedkar प्राप्त finds करते out is that Dalit students should विश्वविद्यालय में also छात्रों के get लिए education at par, तमाम उच्च par शिक्षा with गुणवत्तापूर्ण upper caste शिक्षा students. प्राप्त He हो उन्हें, wants इसके लिए Dalits तमाम to प्रयास हैं be किए जा रहे हैं। respected, and he wants विश्वविद्यालय them में to शोध छात्रों के enjoy लिए egalitarian ई-लाइब्रेरी citizenship. स्थापित की जा रही है In जिसमें that endeavor, गुणवत्तापूर्ण Dr. Ambedkar had शोध established the में People's सुविधा Education प्राप्त हो Society, सके। and in fact विश्वविद्यालय urged परिसर the then में government to छात्रों send को Dalit निःशुल्क students abroad for वाईफाई की सुविधा दी for जा their रही है education, so that they और would हमारा return प्राविधिक and work शिक्षा for the विभाग community and the प्रदेश society. के सभी But he was disappointed in one of सरकारी his speeches. इंजीनियरिंग He says कॉलेजेस that और he was सरकारी disappointed with पॉलिटेक्निक्स the में educated Dalits. छात्रों को You निःशुल्क have to say वाईफाई something की on सुविधा Yes, absolutely. प्रदान So we करने see का that प्रयास कर Ambedkar रहा है। strived for his entire ये नया life परिसर to fight नए for कलेवर different के rights, साथ educational and civic छात्रों rights को of the उनके Dalits. आगामी And he जीवन was very में instrumental in उचित sending some स्थान प्राप्त Dalits कराने में abroad सहायक हो, so that they could seek इसके लिए मेरी higher शुभकामनाएं education हैं। and then मैं return पुनः to the community यहाँ and help पर the community in आदरणीय its प्रधानमंत्री advancement जी का and बहुत तहे improvement and दिल so से on. स्वागत करता However, हूँ। he आदरणीय राज्यपाल mentions जी that का, he was आदरणीय not very मुख्यमंत्री happy जी का with और these मंच पर so-called उपस्थित सभी educated हमारे Dalits महानुभावों because का मैं they were बहुत बहुत trying स्वागत to अभिनंदन move करता away हूँ। from the बहुत community. बहुत So he does express that. However, it is not. धन्यवाद It is difficult to श्रीमान generalize because there were many committed हमारे मंत्री जी, Dalit activists, educated दोस्तों, activists साथियों, who आपने were सबके बारे में, हमारे engaging विश्वविद्यालय के बारे with the में community बताया and भी who were working with और Ambedkar. स्वागत भाषण Dr. दिया। Ambedkar also मेरा तो was a मानना है कि firm पल believer पल in the से बनता है constitutional एहसास, methods for emancipation एहसास of से बनता है विश्वास और विश्वास से depressed बनते हैं classes, रिश्ते and for that और matter, रिश्तों से he बनता worked है कोई tirelessly खास, for the रिश्तों से emancipation of बनता the है कोई Dalits, खास। women in धन्यवाद general, माननीय and the मंत्री जी।
working class. अब बारी Could you, है उस share गरिमामय your views on व्यक्तित्व this? की Absolutely. ओजस्वी वाणी Both सुनने का Ambedkar और and when we look at the आशीर्वाद प्राप्त non-Brahmin करने leader का from Western जिनको India, जनता ने Jyotirao अपना Phule. अपार Both of स्नेह them देकर work भारी from within बहुमत the से state. So उत्तर they प्रदेश use जैसे विशाल constitutional राज्य की measures बागडोर सौंपी to है। मेरा work आशय for माननीय the मुख्यमंत्री emancipation and the उत्तर uplift प्रदेश of श्रीमान the योगी lower आदित्यनाथ जी से castes है, and Dalits जिन्हें specifically. उत्तर प्रदेश एवं And here I just विशेषकर want to पूर्वी very उत्तर quickly प्रदेश point की out, जनता when Ambedkar is talking आदर about पूर्वक education, महाराज जी के रूप में he- संबोधित yes, करती he is है। spending a मेरा lot of विनम्र time on निवेदन Dalit है महाराज जी education, से but कि his कृपया idea आप and हमें goal of आशीर्वाद education दें is for और all उपस्थित जनमानस Indians. को संबोधित That will करें। include Dalits आदरणीय as well योगी as जी। non-Dalits. So we need to pay attention to that. And so when he is talking about constitutional means, here also we see that he is trying to work within the framework of the state, trying to seek as much आज के इस समारोह as के benefits that he मुख्य can अतिथि from both the colonial government and the post-colonial देश के Indian government. And he is doing this यशस्वी on a number of प्रधानमंत्री levels. So for example, he enters आदरणीय the Bombay श्री Legislative नरेंद्र मोदी जी, Council, where he is able to प्रदेश के pass, माननीय राज्यपाल or just propose certain श्री bills राम and नाईक get them जी, enacted. For example, the bill for मेरे compulsory सहयोगी primary education. उप Or when मुख्यमंत्री he द्वय is elected as the law माननीय श्री minister केशव here प्रसाद in मौर्य the जी, parliament, he is fighting माननीय for डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, women's rights, which is not just उत्तर Dalit प्रदेश के women's rights to, for example, प्राविधिक maternity शिक्षा मंत्री leave, for divorce, माननीय आशुतोष or so on, टंडन but जी, for all women. Yeah, ग्राम्य similarly विकास also के his राज्य मंत्री contribution स्वतंत्र for the प्रभार workers, डॉक्टर 8 महेंद्र hours सिंह जी, workers' rights. I would like माननीय to speak more सांसद about what कौशल he किशोर जी, did, for example, with the Hindu Code. bill. AKTU I के mean, there were some measures that कुलपति there were some प्रोफेसर leaders who were विनय कुमार पाठक जी, proposing these आज के इस reforms. However, समारोह it was में Ambedkar उपस्थित who was instrumental in AKTU debating and discussing और about उससे संबद्ध these विभिन्न ideas, संस्थाओं के सभी about सम्मानित talking about, आचार्यगण, as you pointed out, the विद्यार्थीगण, hours of work, about उपस्थित trade unions, महानुभाव the kind of work that एवं people पत्रकार could do. मित्रों, So he was very आज हम सबके keen लिए on working for अत्यंत the rights of the lower class. हर्ष और Dr. Ambedkar गौरव का विषय है said that if you educate a डॉक्टर woman, APJ you have अब्दुल educated कलाम the whole family. And he said प्राविधिक that, विश्वविद्यालय के that according to him, नवीन he परिसर के measures the लोकार्पण progress हेतु of a society based on the हमारे बीच में progress made by women देश के यशस्वी in the प्रधानमंत्री society. So could you throw some lights on Dalit आदरणीय women that you श्री have been नरेंद्र मोदी studying जी Dalit उपस्थित women? हैं। How have Dalit women taken मैं इस अवसर पर expectations आदरणीय and how प्रधानमंत्री did जी they का achieve those goals? Actually, उत्तर this, प्रदेश being a सरकार historian, की ओर से quickly going back because हृदय से Ambedkar स्वागत is करता हूं, also अभिनंदन drawing करता upon हूं। something. So this is the British official, and he इस आयोजन author of many के books साथ ही who initiates this conversation. माननीय प्रधानमंत्री जी as द्वारा looking to the status of देश women के as the measure of civilization. पावर ग्रिड कारपोरेशन की 400 केवी Who starts this लखनऊ कानपुर conversation actually. DC And many ट्रांसमिशन leaders, लाइन including Ambedkar, are drawing को on राष्ट्र that. को And that is where we समर्पित see that Ambedkar is also looking at किया जाना है। and this is the larger conversation. साथ ही देश Ambedkar के is अंदर part of it, where he माननीय says that, प्रधानमंत्री it is जी ने women who इस देश are, के प्रत्येक who- व्यक्ति who को are going to आवास be more उपलब्ध कराने के responsible जिस for लक्ष्य को the निर्धारित किया है, emancipation of the Dalits उस क्रम में and एक women महत्वपूर्ण who would आयोजन actually be more इस देश instrumental के in the ग्रामीण role of क्षेत्र के untouchable. लाभार्थियों को So he आवास is in, वितरण with के this स्वीकृति tone, he is स्वीकृति पत्र actually के वितरण का making कार्यक्रम women- भी यहाँ पर he is, संपन्न होने जा more रहा है। powerful. He is giving them that agency. मुझे However, ये बताते हुए really प्रसन्नता want है to stress here that कि मई 2002 people are में trying to say that this is मई exactly what 2000 में protest, reformers, उत्तर प्रदेश के अंदर प्राविधिक शिक्षा में एक समरूपता लाने के लिए the Dalit struggle is different. तत्कालीन भारतीय Apart जनता from पार्टी this upper caste नेतृत्व की सरकार ने notion प्रदेश of में एक women टेक्निकल being यूनिवर्सिटी की framed in a स्थापना की थी। particular way. Dalits depart from मई it because Dalits are also fighting सन 2000 में for स्थापित their dignity. उत्तर प्रदेश As प्राविधिक women. विश्वविद्यालय The role of woman is सितंबर very 2015 में because it is the Dalit woman देश के पूर्व who is राष्ट्रपति facing double oppression भारत as रत्न belonging to a डॉक्टर particular APJ caste, अब्दुल कलाम belonging to a जी के particular नाम gender. पर So what Ambedkar is इस trying to विश्वविद्यालय do का is नामकरण he's हुआ trying to really और आज empower this Dalit woman इस विश्वविद्यालय के to not नवीन only परिसर का challenge लोकार्पण public patriarchy, but डॉक्टर कलाम private patriarchy that this woman के faces स्मारक inside the home. और So, देश for के example, प्रख्यात private वैज्ञानिकों patriarchy with that. He talks के about स्मारक how का Dalit भी women लोकार्पण should का not कार्यक्रम cooperate with Dalit men आदरणीय प्रधानमंत्री जी if के द्वारा the यहाँ men, पर for संपन्न example, होगा। are drinking alcohol.
or if they are not going to follow उत्तर प्रदेश का यह whatever the community has प्राविधिक decided, विश्वविद्यालय political and historical उत्तर प्रदेश के moment. So that 621 is how he's making them very powerful inside the home. प्राविधिक Both संस्थाओं Dalit and non-Dalit men should pay को attention. संचालित करता है, And in the जिसके public, अंतर्गत by bringing out 2,86,000 से अधिक for conferences, छात्र by छात्राएं involving them in both टेक्निकल direct and एजुकेशन indirect action यहाँ पर प्राप्त for करती हैं। the community. We यह clearly विश्वविद्यालय see प्राविधिक that शिक्षा के Ambedkar उच्च is मानकों के अनुरूप trying to शिक्षण एवं work upon अनुसंधान में these capacities of women. उत्कृष्टता He हेतु is- तत्पर it's not है just him, I mean, of course, women और are देश एवं choosing समाज के to do this. So it's not परिवर्तन that में they're blindly अपनी प्रमुख following. भूमिका Ambedkar has निभाने का some प्रयास कर रहा है। scholars are trying to माननीय portray. प्रधानमंत्री जी We के clearly see that, for example, डिजिटल इंडिया Dalit women कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में choose critically इस विश्वविद्यालय Ambedkar के and द्वारा their प्रमुख involvement भूमिका in का निर्वाह rather than go with Gandhi. प्रारंभ किया गया है there have been और इस critics क्रम from में Dalit feminists विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ enough जितने भी attention had been not paid भुगतान for हैं grooming the उन्हें Dalit ऑनलाइन women करके leaders. So in कैशलेस this ट्रांजैक्शन के context, साथ do you want to say something? जोड़ने का And how कार्य it प्रमुखता differed? के साथ संपन्न Did किया Dr. है। Ambedkar consciously groomed Dalit इस विश्वविद्यालय ने women leaders, or it was सभी just by पंजीकृत default छात्रों को that they happened to be there? आधार नंबर के साथ जोड़ने He was making a conscious और effort भविष्य में शैक्षिक उद्देश्यों में इसका उपयोग किया जा सके, इसके लिए एक अभिनव कार्य किया ही है। साथ ही साथ विद्यालय के नामांकन, प्रश्न पत्रों की परीक्षा केंद्रों में भेजने आदि की कार्रवाई को भी ऑनलाइन करने का कार्य, उत्तर पुस्तिकाओं के नामांकन, मूल्यांकन, प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों का निर्धारण आदि भी डिजिटल माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ है। स्टूडेंट गिरवांस ऐप भी इस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। साथ ही छात्रों में करके सीखो की संस्कृति विकसित करने के लिए इनोवेशन और इंक्यूबेशन परियोजना इस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की है। वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में प्रदेश में अभियांत्रिक शिक्षा के तहत इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन और इंक्यूबेशन को समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके तहत इस विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार के द्वारा 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं के अंदर IIT लखनऊ, HBTU कानपुर, Dr. Ambedkar in his last speech to the UPTI Constituent कानपुर, Assembly, he says, I feel, MM however good a constitution may be, TU it is sure गोरखपुर to में turn out to be bad इनोवेशन because और those who call to इंक्यूबेशन work केंद्र स्थापित it किए happen हैं। to be a bad lot, भविष्य में And the current 25 regime, अन्य केंद्रों में भी which is इन्हें in the स्थापित business करने of की दिशा appropriating में Ambedkar, विश्वविद्यालय ने is महत्वपूर्ण trying प्रयास to प्रारंभ play किया है। havoc with the constitution and the secular महोदय, fabric and the democratic nature of मुझे our बताते हुए constitution प्रसन्नता है and its polity. Could you share your thoughts on that? Yes, certainly, because उत्तर प्रदेश के एक TU के द्वारा the current regime इन योजनाओं and को its various agents अटल are इनोवेशन मिशन supporting और Ambedkar, स्टार्टअप but इंडिया the जैसे problem is महत्वपूर्ण they are योजनाओं की doing दिशा से this very selectively using एक only, नई you know, पहल some प्रारंभ हुई है। speeches or just even हमें some विश्वास है fragments कि of sentences इन here योजनाओं and से there to show as to आने वाले how समय में they are बेरोजगारी की समस्या को कम करने causes of certain और people. However, आपके I उन would प्रयासों suggest में that, जिसमें you know, भारत को they दुनिया की actually read as, you know, एक महाशक्ति के रूप में what Ambedkar has स्थापित written करने about का जो constitution प्रयास आपने making प्रारंभ and किया है, constitution ये execution, विश्वविद्यालय उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। That's it for the इसके साथ ही series. Thank you, Dr. Shailaja. प्रदेश के अंदर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को कौशल विकास कर उन्हें सुगम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, आर्थिक असमानता के साथ साथ आर्थिक कदाचार को भी रोकने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो व्यवस्था देश के अंदर आपके निर्देशन में प्रारंभ हुई है, यह विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ कर रहा है। प्रदेश सरकार ने भी भीम ऐप और भीम आधार सेवा को प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ते हुए प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक जन सुविधा केंद्रों को इस सुविधा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। प्रदेश के अंदर 16,000 बैंक की शाखाओं को भीम ऐप के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण किया गया है। साथ ही साथ आने वाले समय में राज्य में 312 करोड़
डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि प्रदेश के अंदर विकास की जितनी भी योजनाएं प्रारंभ हो उसे हम ई टेंडरिंग के माध्यम से ही प्रारंभ करेंगे और इसको प्रदेश ने लागू किया ही है। इसके साथ साथ आने वाले समय में सरकारी कार्यालयों में, चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में ई ऑफिस और ई व्यवस्था लागू हो, ई हॉस्पिटल की व्यवस्था लागू हो। इसके लिए हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अपितु काले धन पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो आपकी मंशा है कि असमानता दूर हो, अमीर और गरीब के बीच खाई पटे, गांवों में भी अत्याधुनिक संचार सुविधाएं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कौशल विकास के क्षेत्र में 5 लाख से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में उनके कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। प्रदेश सरकार इस संबंध में लगभग 6 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों का अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और बहुत शीघ्र यह पहल आगे बढ़ेगी। राष्ट्र को तकनीकी और सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, उसी क्रम में डॉक्टर कलाम तकनीकी विकास के क्षेत्र में देश को जिस क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहते थे, उस उनके प्रति भावांजलि व्यक्त करने के लिए प्रदेश की सरकार ने इस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के इस तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रखा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के इस नवीन भवन का जब लोकार्पण आपके कर कमलों से यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, तो यह प्रदेश और देश के लिए एक भावपूर्ण क्षण है। इस अवसर पर पुस्तकालय जो भवन यहाँ बना है, जहाँ डॉक्टर कलाम का एक स्मारक, भव्य स्मारक भी बना है, देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों श्री आर्यभट्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, श्री सत्येंद्र नाथ बोस, श्री प्रफुल्ल चंद्र राय, श्री रामानुज श्रीनिवासन, श्री वेंकट रमण चंद्रशेखर, श्री विक्रम साराभाई, श्री होमी जहांगीर भाभा, श्रीमती जानकी अम्माल, श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की मूर्तियां भी इस भव्य स्मारक के पुस्तकालय में स्थापित की गई हैं। इस अवसर पर आज आपके कर कमलों से ग्रिड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 400 kV लखनऊ कानपुर DC ट्रांसमिशन लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। यह लाइन देश के पूर्वी भागों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में उच्च क्षमता की निर्माणाधीन उत्पादन इकाइयों से उत्तर प्रदेश तथा इस देश के उत्तरी भागों में ऊर्जा पहुंचाने में सहायता करने के साथ ही प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। महोदय, आपकी कृपा से प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के लिए अगले 3 वर्ष के दौरान 24,43,000 आवास इस देश के गांवों में निवास करने वाले गरीबों के लिए निर्मित होने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यद्यपि आपने इस योजना का शुभारंभ 2016 में आगरा से प्रारंभ किया था, पर्याप्त मात्रा में धनराशि दिए जाने के बावजूद पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाई थी। लेकिन आपके मार्गदर्शन में सबका साथ और सबके विकास की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की इस नवगठित सरकार ने 6 लाख से अधिक इस देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले उन परिवारों का रजिस्ट्रेशन करके अब तक 5,43,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
जिसमें प्रत्येक परिवार को 1,20,000 रुपये की राशि आवास के लिए आवास निर्माण के लिए उपलब्ध करानी है, उनकी पहली किस्त जारी कर दी है और उसमें आज कुछ लाभार्थियों को आपके कर कमलों से आवास यहाँ पर उपलब्ध होने हैं। हम लोगों ने यह भी निर्धारित किया है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख से अधिक ऐसे गरीबों के लिए आवास निर्मित कराएगी और आगामी 3 वर्ष के अंदर 24 लाख के उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश सरकार प्राप्त करेगी, जो आपने इस देश के अंदर प्रत्येक परिवार को एक एक आवास प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किया है। आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत आह्लादकारी है, जब आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति प्रदेश की राजधानी में प्रदेश की जनता को प्राप्त हो रहा है। यद्यपि प्रदेश पर आपकी कृपा सदैव से बनी रही है और मैं इस अवसर पर इसलिए भी आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। भारत की इस प्राचीन विधा को जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व आपने प्रदान किया है, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है, क्योंकि अपने पूर्वजों की इस ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आपके कारण प्राप्त हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करना चाहूँगा, लोगों के अंदर एक बात सामने आती है, लोग कहते हैं कि जहाँ पर अन्य लोग सोचना बंद करते हैं, मोदी जी उसके आगे सोचते हैं। और इस बात को लेकर के कल आपने उत्तर प्रदेश के एक सपूत को देश के आगामी राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से प्रस्तुत करके प्रदेश के अंदर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का, देश के गांव के, गरीब के, दलित के बेटे को जो सम्मान देने का कार्य करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का दायित्व एक बार पुनः निर्वहन किया है। मैं प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपका मार्गदर्शन में पूरा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जहाँ लोगों की सोच समाप्त होती है, वहाँ से परम आदरणीय योगी जी सोचते हैं। सज्जनों, सर का, योगी जी का ये सपना होता है कि रास्ते पर चल सके या प्रदेश मेरा शान से, रास्ते पर चल सके या प्रदेश मेरा शान से, हर सफ़र अब हो शुरू एक गीत के मुस्कान से, मील का पत्थर नया जिस पर सवेरा हो लिखा, शीश ऊंचा राष्ट्र का हो प्रगति के आह्वान से, प्रगति के आह्वान से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब अवसर है माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उनके कर कमलों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के इस नवीन परिसर के लोकार्पण तथा 400 केवी लखनऊ कानपुर डीसी पारेषण लाइन के राष्ट्र को समर्पित करने का। इस क्रम में मेरा निवेदन प्रेषित है माननीय मुख्य अतिथि, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से कि कृपया लोकार्पण करने की कृपा करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन प्रेषित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरण करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कृपया लाभार्थियों को मंच तक लाया जाए, जिसमें पहली लाभार्थी श्रीमती रामावती मंच पर लाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2016 को जनपद आगरा में हुआ था। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के पश्चात युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए अब तक
6 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है और लगभग 1500 करोड़ से अधिक धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी गई है। उसी कड़ी में लाभार्थी श्रीमती रामावती मंच पर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनको प्रमाण पत्र हस्तगत करा रहे हैं। उक्त योजना के अंतर्गत सरकार की अभूतपूर्व प्रगति के आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सांकेतिक रूप में इन लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। श्रीमती रामावती। अगली लाभार्थी मोहतरमा अफसाना है। अफसाना को प्रमाण पत्र दिया गया। श्रीमती ललिता। श्रीमती रामरती। माननीय प्रधानमंत्री से आशीर्वाद प्राप्त करती हुई श्रीमती रामरती। श्रीमती मुन्नी। जिंदगी के कई मुकाम अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हम सब ने, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। श्रीमती मुन्नी देवी। श्रीमती मालती। श्रीमती कैलाशा। श्रीमती केशाना। श्रीमती केशाना। श्रीमती रूपावती। श्रीमती रीना। यह विलक्षण क्षण। धन्यवाद महोदय। देवियों एवं सज्जनों, अब बारी है भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री, विश्व में भारत का मान बढ़ाने वाले शिखर पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी उद्बोधन को सुनने का, जिन्होंने संसद भवन पहुंचने पर प्रवेश से पूर्व भारत माता के सम्मान में यह कहते हुए नमन किया था कि मैं तो प्रधान सेवक हूँ। आपका मानना था कि तुम्हारे दर पे सुकून मिलता है, तुम्हारी इबादत में नूर मिलता है, जो झुकाता है माँ के सजदे में सिर उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा,
राज्य सरकार के मंत्री श्री गोपाल टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र जी, संसद में मेरे साथी श्री कौशल किशोर जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान विनय कुमार पाठक जी, और नौजवान साथियों, आज एक साथ कई प्रकल्पों के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा जिस उमंग और उत्साह के साथ स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ विकास की यात्रा चल रही है, देश के हर कोने में उत्तर प्रदेश की पल पल की घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान है, बड़ी उत्सुकता है। और योगी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक जो कदम उठाए जा रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए कई वर्षों की जो बीमारियां हैं, लंबे अरसे के जो अवरोध हैं, उसे दूर करते हुए उत्तर प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने के उनके प्रयास, योगी जी को, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मुझे कुछ समय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिताने का अवसर मिला। हमारे वैज्ञानिक मानवता के लिए ऐसे ड्रग्स जो सस्ते भी हो, कारगर भी हो और साइड इफेक्ट के बिना त्वरित उपचार करने वाले हो, उसके संशोधन में अपनी पूरी जिंदगी लेबोरेटरी में खपा रहे हैं। वैज्ञानिक एक प्रकार से आधुनिक ऋषि होते हैं और आधुनिक ऋषि की तरह वो अपने लक्ष्य को समर्पित होकर के मानव को किस प्रकार से मुसीबतों से मुक्त किया जाए, शारीरिक पीड़ा से मुक्त किया जाए, परंपरागत ज्ञान विज्ञान को आधुनिक साधनों के माध्यम से, आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से और अधिक सटीक कैसे बनाया जाए, उस पर वो काम कर रहे हैं। आज मानव के सामने खास करके आरोग्य के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं।
एक दवाई बनाने में सालों बीत जाते हैं, सैकड़ों वैज्ञानिक खप जाते हैं, लेकिन उसके पहले नए प्रकार की बीमारी जन्म ले लेती है। एक प्रकार से स्पर्धा चलती है। लेकिन विज्ञान की मदद से, इनोवेशन के सहारे हमने इस दोषों को परास्त करना है, बीमारियों को परास्त करना है और गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते से सस्ती और कारगर दवाई कैसे उपलब्ध हो, इस चुनौतियों का हमने स्वीकार करके विजयी होना है। आज मुझे इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भवन के निर्माण लोकार्पण का भी अवसर मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता हूं कि तकनीकी जगत के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा कोई प्रेरणा का नाम हो सकता है। Science is universal, but technology must be local. और यहीं पर हमारी कसौटी है। विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं, विज्ञान का ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी से उन चीजों की अपेक्षा है कि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से जब टेक्नोलॉजी मानव जीवन को बड़ी प्रभावित कर रही है, तब हम टेक्नोलॉजी में वो कौन से संशोधन करें, कौन से आविष्कार करें जो हमारे सामान्य मानवीय की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाए। हम दुनिया में गर्व कर रहे हैं कि भारत, जिसके पास 800 मिलियन नौजवानों की फौज है, 35 से कम उम्र के नौजवानों का ये देश है, उसके बाद दिमाग भी है, अगर हाथ में हुनर हो, विज्ञान का अधिष्ठान हो और टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो, तो मेरा देश का नौजवान विश्व में अपना डंका बजाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी के सहारे उतनी प्रगति नहीं कर सकते जो पिछली शताब्दियों में बहुत बड़ा रोल कर गई होगी, लेकिन आने वाली शताब्दी में शायद वो उपकारक न भी हो। और इसलिए टेक्नोलॉजी को समय से आगे चलना पड़ता है, उसे दूर का देखना पड़ता है। और भारत के नौजवानों में वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को कैसे पार करें। आज भी हमारा देश डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारी फौज के लिए हर छोटी मोटी चीज विदेशों से हम लाते हैं।
क्या हम बहुत जल्द डिफेंस के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं? क्या देश की सुरक्षा के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उसे भारत में ही नए नए आविष्कार के साथ हम क्यों न करें? सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इस सपनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने कई नीतिगत परिवर्तन किए। डिफेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने ओपन किया। हमने भारत के कारोबारियों को पार्टनरशिप के लिए ओपन अप किया है। हमने भारत सरकार जो चीजें बाहर से लेती है, अगर हिंदुस्तान में बनी हुई लेगी तो उसको विशेष प्रोत्साहन की सूची तैयार की है। और ये सारे अवसर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुई युवा पीढ़ी के लिए है। वैसा ही एक दूसरा क्षेत्र है। आज मेडिकल साइंस एक प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब डॉक्टर तय नहीं करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, मशीन तय करता है कि आप किस बीमारी से ग्रस्त है। आपके शरीर में कहां तकलीफ है, कहां कमी है, कैसी तकलीफ है, वो मशीन तय करता है। और बाद में डॉक्टर उस मशीन के रिपोर्ट के आधार पर आपके लिए आरोग्य का रोड मैप क्या होगा, दवाइयां कौन सी होगी, ऑपरेशन करना है नहीं करना है, उसके फैसले करता है। लेकिन ये मेडिकल इक्विपमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, भारत इतना बड़ा देश है, उसको इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारी टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स क्यों न सोचें कि हम वो स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम उस विषय पर खोज करेंगे। हम भारत के अंदर ही आरोग्य के क्षेत्र में जिस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नई खोज के साथ नए निर्माण की दिशा में जाएंगे। मेक इन इंडिया, ये पूरा कंसेप्ट हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हमारे नौजवानों को एक नया अवसर देने के लिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, चाहे फाइनेंस की व्यवस्था करनी हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की व्यवस्था हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्किल को प्राधान्य देना हो, चाहे टेक्निकल नॉलेज में नई ऊंचाइयों को पार करना हो, एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ देश के पास जो टेक्निकल ज्ञान है, जो टेक्निकल महारत है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास होगी, हमारी नौजवान पीढ़ी के पास होगी, इन सब को संतुलित करते हुए, संकलित करते हुए देश को इस नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और इस देश ने दिखाया है, जब भी हिंदुस्तान के युवा लोगों को अवसर मिला है, उन्होंने चुनौतियों को पार भी किया है और नए सीमांकन भी प्रस्थापित किए हैं। मार्स पर जाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने प्रयास किया। पहले ट्रायल में दुनिया का कोई देश मार्स ऑर्बिट में नहीं जा सका था। हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश था जो पहले ट्रायल में मार्स ऑर्बिट में पहुंचा था। और दुनिया को तब अचरज हो गया कि भारत के युवा वैज्ञानिकों ने ये मार्स की यात्रा इतनी सस्ते में की। लखनऊ में अगर आपको टैक्सी में जाना है, ऑटो रिक्शा में जाना है, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया तो लगता ही होगा।
हम मार्स पर पहुंचे, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपये का खर्चा किया। और हमारा मार्स पर जाने का जो टोटल बजट था, वो हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है, उससे कम खर्चे में हमारे देश के वैज्ञानिक मार्स पर पहुंच सके। ये सामर्थ्य है हमारी युवा पीढ़ी में, ये सामर्थ्य है हमारे देश के टैलेंटेड नौजवानों में, टेक्नीशियनों में, वैज्ञानिकों में। पिछले दिनों जब भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़े, दुनिया के लिए आश्चर्य था कि एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ने की ताकत इस देश के वैज्ञानिकों में है। इस सामर्थ्य को लेकर के आगे बढ़ना है। और उस अर्थ में आज ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उससे साथ जुड़े हुए सारे संलग्न कॉलेजेस, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना कितना कठिन है। हमारे गवर्नर श्रीमान राम नाईक जी चांसलर के रूप में यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन कैसे आए, यूनिवर्सिटी में समय सीमा में काम कैसे हो, इस पर देर रात काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के 28 यूनिवर्सिटी में से 24 यूनिवर्सिटी को अब वो समय पर एग्जाम हो, समय पर कॉन्वोकेशन हो, इसको कराने में सफल हुए हैं। ये डिसिप्लिन बहुत आवश्यक होती है। लेकिन राम नाईक जी बहुत ही फोकस काम करने के आदी हैं। जिस चीज को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम, परंपराएं, डिसिप्लिन, विद्यार्थियों के समय की बर्बादी न हो, उस पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब योगी जी की सरकार आ गई है तो उनको और सुविधा हो गई है, काम को और सरलता से बढ़ा रहे हैं। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कुछ परिवारों को उस आवास के निमित्त उनकी पसंदगी के संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया गया। 2022 में भारत आजादी के 75 साल मनाएगा। आजादी के दीवानों ने सपने देखे थे, तब वो फांसी के तख्त पर चढ़े थे। जवानी जलों में खपा दी थी। एक सुखी समृद्ध हिंदुस्तान देखना चाहते थे, आजाद हिंदुस्तान देखना चाहते थे। उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। 2022 में आजादी के 75 साल होंगे। क्या 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी नहीं है कि देश के दीवानों के सपनों को पूरा करने के लिए हम हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं? क्या 125 करोड़ देशवासी मिलकर के इस देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं? मेरा आत्मविश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों में वो सामर्थ्य है कि हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमने एक संप्रदाय संजोया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल हो, हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास उसका अपना रहने के लिए घर हो। उसको अपनी छत हो और घर भी वो हो जिसमें शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, नजदीक में बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो।
और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाएं, ग्रामीण आवास का, शहरी आवास का, और उसी के तहत कुछ माताओं को आज आवास मिले, उनको घर मिले, उसके लिए एक सम्मति पत्र सरकार की तरफ से दिया गया है। और एक मां कह रही थी, अब अच्छा हुआ, बोले मेरा मकान बन जाएगा, बच्चों की शादी कराऊंगी और आपको शादी में बुलाऊंगी। उनका इतना उत्साह था। सपने जब सच होने लगते हैं तब इंसान किसी भी अवस्था में क्यों न हो, कुछ कर गुजरने का माजा पैदा होता है। वो मैंने उस मां की बातों से देखा। शब्द उनके थे, लेकिन वो भाव बड़ी प्रेरणा देती थी। आज बिजली, ऊर्जा, ये विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन की लाइफ में ऊर्जा का अपना एक सामर्थ्य है। रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा देश में एक नई क्रांति लाने का प्रयास चल रहा है। एलईडी बल्ब घर घर पहुंचा करके बिजली बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। करीब 22 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी के बल्ब पिछले 1 साल के भीतर भीतर घरों में लग चुके हैं, और उसके कारण बिजली उससे भी ज्यादा मिलती है। लेकिन खर्चा इस एलईडी बल्ब के कारण, जिन परिवारों में एलईडी बल्ब का उपयोग हो रहा है, उससे जो बिजली के बिल की बचत हो रही है, वो करीब करीब 12 से 13 हजार करोड़ रुपए की बचत हो रही है। ये सामान्य मानवी के पैसे बच रहे हैं। आज 400 केवी का ट्रांसमिशन लाइन का यहां मैं लोकार्पण कर रहा हूं। ये जो मध्य भाग है कानपुर तक का पूरा, उन्नाव समेत सारा, वहां पर क्वालिटी बिजली जो यहां के औद्योगिक जीवन को मदद करेगी, यहां के घर में जो बिजली चाहिए वो मदद मिलेगी। और आपके यहां तो बिजली वितरण में भी वीआईपी कोटा रहता था, मैंने सुना है। कुछ डिस्ट्रिक्ट बड़े वीआईपी रहते थे, वहां बिजली का एक प्रकार रहता था, और कुछ भी डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे। मैं योगी जी की बधाई करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनका, कि उन्होंने सभी 75 जिलों को एक समान रूप से बिजली के कारोबार का मदद करने का निर्णय किया। शासन का यही काम होता है। कुछ को विशेष लाभ और कुछ को कुछ नहीं। इसको खत्म करने में कितनी दिक्कत आती है मैं जानता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है योगी जी करके रहेंगे। उन्होंने तय किया है, परिणाम लाके रहेंगे। भाइयों बहनों, विकास की नई ऊंचाइयों पर पार करने का देश प्रयास कर रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। 125 करोड़ देश, इन 125 करोड़ देशवासियों का ताकत आज पूरा विश्व ये मानता है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई देश है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। पूरा विश्व आज भारत को गौरव की तरफ देख रहा है। अब हम सब 125 करोड़ देशवासी मिलकर के तय करें, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक मिलकर के तय करें, आप देखिए बदलाव कैसा आता है। 1 जुलाई से जीएसटी का प्रारंभ हो रहा है। इस देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस देश के सभी राजनीतिक दल, इस देश के सभी राजनीतिक नेता, कितना ही विरोध क्यों न हो, इस देश की सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर के
एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की सिद्धि है, भारत के राजनीतिक दलों की मैच्योरिटी की सिद्धि है। दल से ऊपर देश, ये हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों ने दिखा दिया है। मैं सभी राजनीतिक दलों का आभारी हूं, मैं सभी राज्य सरकारों का आभारी हूं, मैं सभी विधानसभाओं का आभारी हूं, लोकसभा का, राज्यसभा का आभारी हूं। सबने मिलकर के इस जीएसटी लागू करने के लिए प्रयास सफलतापूर्वक किया है। और मुझे विश्वास है कि 1 जुलाई के बाद नागरिकों के सहयोग से, खास करके छोटे मोटे व्यापारियों के सहयोग से हम सफलतापूर्वक जीएसटी में आगे बढ़ेंगे, तब दुनिया के लिए बहुत बड़ा अजूबा होगा कि इतना बड़ा देश इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत का पहचान होगी दुनिया को कि इस देश के सभी दल, सभी भिन्न भिन्न विचारधारा वाले दल देश हित में कंधे से कंधा मिला करके कितना बड़ा फैसला करते हैं, ये दुनिया के सामने एक अजूबा की तरह दिखने वाला है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी की ताकत है, भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की लीडरशिप की मैच्योरिटी की ताकत है कि संभव हुआ है। और इसलिए इसकी क्रेडिट न मोदी को जाती है, न एक सरकार को जाती है, ये 125 करोड़ देशवासियों को जाती है, भारत की मैच्योर्ड लोकतंत्र को जाता है, देश के सभी राजनीतिक दलों को जाता है, देश की सभी विधानसभाओं को जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को जाता है। अब इतना बड़ा काम हुआ है, हम उसे समझे। कठिनाइयां हैं तो सरकार ने सारी व्यवस्था की है, इन कठिनाइयों को दूर करने के पूरे प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन एक सफल यात्रा और अधिक अच्छी तरह सफल हो, उसके लिए 1 जुलाई से सभी देश के, विशेष करके व्यापारी कौम, ये उसको अपने कंधे पर उठाएं, 2 कदम आगे चले और सरलतापूर्वक उसको पार करने में देश का नेतृत्व ये हमारे व्यापारी आलम करे और करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं आप सबको इस कैंपस में पढ़ने वाले, इस कैंपस से जुड़े हुए सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सफलता के लिए बहुत बहुत अभ्यर्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका उद्बोधन देश के विकास पर केंद्रित रहा और यह स्पष्टवादिता, पूरे देश इस स्पष्टवादिता की कायल है। सर, हम लोगों का तो ये मानना है कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। देवियों सज्जनों, कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है। मेरा निवेदन प्रेषित है माननीय कुलपति महोदय से कि मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रस्तुत करें। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, जिससे कि इस विश्वविद्यालय की यादगार सदैव आपके मानस पटल पे बनी रहे। हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस विश्वविद्यालय के इस नवीन परिसर का लोकार्पण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथिगण को धन्यवाद, जितने यहाँ पर हमारे आगंतुक लोग हैं सबको धन्यवाद। इस व्यवस्था के लिए जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, आप सबको विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्थगित किया जाता है।